Bismillahirrahmanirrahim. It is class 10th, subject mathematics. Theorem 6.8. In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Prove it. Here it is theorem 6.8. हमें ये प्रूव करना है कि जो राइट ट्रायंगल होती है उसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर, जो अगर हम उसको स्क्वायर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू सम एंड स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यानी जो ट्रायंगल में बाकी दो साइड्स रहते हैं उनको अगर हम स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यही हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। वी आर गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। in right angle triangle ABC, right angle at B. It is given, and we have to prove, or we can say to prove. तो जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव ये करना है कि जो इसका लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज। यानी हियर इन ट्रायंगल ABC इट इज AB, इट इज AC square, and hypotenuse square will be equal to sum and square of other two sides, that is AB square, it is square, and it is sum with BC, it is but BC square. तो ये हमें प्रूव करना है। Then we will write what we are going to do for proving this. For that we will draw here this perpendicular to AC. So then we will write here by construction. Construction is what we needed to prove it. Draw from B, draw perpendicular BD on this AC. We will write here draw BD perpendicular AC. अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव के लिए मैं लिखूंगा प्रूफ। we know that triangle ADB is right angle triangle, right angle at D. Triangle ADB, it is similar to triangle ABC, and the small triangle that is ADB, it is similar to big triangle that is ABC, because in theorem 6.7 we have already proved it. We will write here by theorem 6.7. When these two triangles are similar, the small triangle ADB and big triangle that is ABC, then their corresponding sides will be in the same ratio. That is here it is AD, and the small side of the small triangle that is AD of the small triangle that is AD, it is corresponding side in big triangle is AB, that is divided by AB. Its ratio with AB will be equal to this longest side of the small triangle, that is AB, or we can say the hypotenuse of small triangle. Its corresponding side in the big triangle will be AC. It is because हमें पता है sides of similar triangles are in proportion, यानी sides are proportional, ये हमें ऑलरेडी पता है। Therefore this implies, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे AD into AC, it will be AD into AC. It is equal to AB into AB, it is AB square. This is our equation first. तो इसी तरह अगर हम दूसरी ट्रायंगल भी, ये छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे, that is BDC, and big triangle that is ABC. Also triangle BDC, it is similar to big triangle that is ABC. क्योंकि हमें थ्योरम नंबर 6.7 में पढ़ा है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, then the two triangles will be similar to the
दिस बिग ट्रायंगल एंड टू ईच अदर, यानी जो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हाइपोटेन्यूज पे, तो जो यहाँ छोटी छोटी दो ट्रायंगल्स बनेंगे वो एक दूसरे के साथ भी सिमिलर होंगे और वो अलग अलग बड़ी ट्रायंगल से भी सिमिलर होंगे। तो दिस इज थ्योरम नंबर 6.7 जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। देन if these two triangles are similar, then their corresponding sides will be also in the same ratio. That is, we can write, or therefore this side, that is, we can say CD or DC, this side, that is DC of CD or DC divided by DC of the small triangle, this very triangle, that is BDC, इसका जो ये side है DC, it is corresponding to in big triangle it is corresponding to BC. Then we will write here CD divided by BC will be equal to BC of the small triangle, that is this hypotenuse of the small triangle. It is corresponding to the AC of the big triangle, क्योंकि बड़ी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज AC है, इस छोटी वाली ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज BC है, क्योंकि राइट एंगल यहाँ है, तो इसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है इस छोटी वाले ट्रायंगल में। देन वी विल राइट हियर BC डिवाइडेड बाय इसका, इस छोटी वाली ट्रायंगल में जो ये साइड BC है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग बड़ी वाली ट्रायंगल में AC है, AC। तो आगे हम लिख सकते हैं बिकॉज साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज AC एंड CD इंटू AC, CD इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू BC, दैट इज BC स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वाला साइड यहाँ इसके साथ ऐड हो जाएगा, दैट इज AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC विल बी इक्वल टू, यहाँ दूसरे साइड में AB आता है, दैट इज AB स्क्वायर, तो इस वाली इक्वेशन में BC आता है, दैट इज BC स्क्वायर। तो यहाँ हम अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ AC और AC कॉमन है, तो AC को अलग निकालेंगे तो अंदर यहाँ रहेगा ब्रैकेट के अंदर AD प्लस, तो यहाँ CD रहता है, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि मैंने इस ब्लॉक और इस ब्लॉक में AC कॉमन निकाला, तो यहाँ AD रह गया और यहाँ CD रह गया, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज AC इंटू AD प्लस CD। अगर हम ट्रायंगल में देखेंगे AD प्लस CD इज इक्वल टू AC, तो यहाँ हम AC लिखेंगे इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AC इंटू AC, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज प्रूव्ड। इस थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, तो हम इस पाइथागोरस थ्योरम को इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। Thanks.